Good morning, sir. Good morning. Hello. Good morning, student. Yes, good morning, students. Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. Yeah. Good morning, sir. So we will start. Welcome, Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya, Vasai West, FIBSA IT 5th SEM.
Subject is imperative programming. Wait a minute. We have to continue with your second unit presented by Assistant Professor Bipin PYT. So last time we have done unit 1, basic parts, how to start the first of all we are giving the introduction C, features of C, what we can do, advantages, which application we can create. After that some syntax part related programming. We have done first of all basic parts, just how to compiler language means what, everything it is there we have done properly. After that we have see the syntax of the how to type the code, header files, then main function, what do you mean main function. Then after that we start the variable declarations, how to declare, what are the data types. After the calculation program we have done this part up to we are declared data types, everything it is constant variables, what is the structure of the C program, how to execute, how to show the output. These are all we are clear in the last unit. Is it right? Yes, sir. Yes. Hello. Hello. Yes, sir. Okay. Fine. So today we have to continue with your second unit, right? So see that now somewhat parts I want to show you related. I already shared you PDF. Unit second. This is from the SEC publication. I said already you can use the TechMax also. In TechMax, they give you practical session also back of the program. So आप second unit का मतलब आपने अगर से TechMax का बुक लिया तो उसमें आपको practical handbook भी उसके साथ में रहेगा. Is it clear? Okay. Otherwise, I share you that practical handbook. स्कैन करके आपको क्या दे सकता हूँ या वहाँ से क्या आया हुआ है वो मैं शेयर करूँगा. You have to start writing the practical also. अब मैं next time आपको practical का index दे दूंगा, indexing page जो लिखने वाला है, और उसके हिसाब से you have to how to write वो practical के बारे में आपको मैं बात करूँ. Today I have to continue with your second unit, that is operator and expression. तो हम लोग को यहाँ पे देख सकते हो in operator they are saying introduction to operator, arithmetic, assignment, relational, logical, bitwise operator, conditional or ternary operator, increment decrement operator, special operator, so total related operator and their expression, and lastly they give you C language library. Okay, now let's start. Now what is operator? Already we have seen operators means what, between two operands or two or more operands we can do the calculation over there, right, or do the comparison there or do the logical parts over there. हम लोग वो ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं? ऑपरेटर आर द जस्ट सिंबल, like plus symbol doing the addition. It is symbolic elements which inform the computer to execute certain mathematical or logical operation. कंप्यूटर क्या वर्क करता है, ऑपरेशन क्या करता है? ऑफ कोर्स इट हैज, आपको पता है देयर आर ALU यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. अपने CPU में एक पार्ट होता है ALU, दैट इज द मेन पार्ट. जैसे आपके ब्रेन में भी we have the part of that logical and mathematical. So that's why we in doing business also we calculate our profit, we are doing logically or mathematically, and then we sort out that related business problem, analyzing everything we are doing through that operators. So we require, अगर आपको कुछ प्रॉफिट के लिए एडिशंस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो वी रिक्वायर द अरिथमेटिक ऑपरेशन. अगर मुझे कंपेयर करना है वैल्यू तो मुझे रिलेशनल ऑपरेटर की जरूरत है. So just like that, operators we are using as a symbolic element which inform the computer to execute certain mathematical or logical operation. So it is symbol that operates on a certain data type. Of course, the symbol कुछ data types के ऊपर workout operation करता है and produces the output as a result of operation. So mathematical or logical expression is generally formed with the help of an operator. कुछ भी मैथमेटिक्स, आपने मैथ्स किया होगा 12th तक तो आपको पता ही है मैथ्स में एक्सप्रेशन होते हैं. तो दैट एक्सप्रेशन वी सॉल्व्ड इट थ्रू द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, राइट. तो सी प्रोग्रामिंग ऑफर्स अ नंबर ऑफ ऑपरेटर व्हिच आर क्लासिफाइड इनटू 8 कैटेगरीज. आपको 8 कैटेगरीज में उसने डिवाइड किया. So in C we can combine various operators of similar or different categories and perform an operation. आपके अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस होते हैं
तो उस ऑपरेशंस को ऑपरेटर की जरूरत होती है और सिमिलर और डिफरेंट कैटेगरीज के ऑपरेशन हम लोग यूज करते हैं। तो इन दिस के हर एक लैंग्वेज में, कोई भी सी के जो है सी प्लस प्लस में सेम रहेगा, आप जावा में जाओगे सेम, डॉट नेट में जाओगे सेम, मतलब ऑपरेटर्स आर नॉट चेंज। आप देखा जाए तो ऑपरेटर चेंज नहीं होते। ओके, एक बार आपने कंसेप्ट क्लियर किया ऑपरेटर्स, तो वो नेक्स्ट प्रोग्राम में भी, लैंग्वेज में भी सेम ऑपरेटर होते हैं, उसका यूज भी हो रहता है, उसको खाली सिंटैक्स से ले कहाँ पे यूज करना है वो हम लोग को सीखना होता है। तो ऑपरेटर फंक्शंस कांस्टेंट वेरिएबल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स लेके, फंक्शंस को लेके, कांस्टेंट वेरिएबल्स लेके कंबाइन करोगे तो वो बनेगा एक्सप्रेशन। Just like they are given expression t plus s into 10. What do you mean that? t is variable, s is variable, और वो दोनों का एडिशन करोगे, into 10 करोगे, तो आपका ऑपरेशन क्रिएट होगा। That is expression. Got it? एक्सप्रेशन हम लोग बनाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस का थ्योरम या पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज दैट पाई आर स्क्वायर? पाई आर स्क्वायर इज अ फॉर्मूला, so that formula we are converted as a expression, right? फॉर्मूला को हम लोग कन्वर्ट एज ए एक्सप्रेशन कर रहे हैं, क्या करते हैं 3.14 इंटू आर, तो आर इंटू तो लगा कि नहीं, वो ऑपरेटर की जरूरत पड़ी, लेकिन वी रिक्वायर दैट थ्री वैल्यूज, व्हाट, पाया, again r value, so these expressions we are represent using operator and combined with variable or constant। अगर मैंने r into r डाला है तो वो वेरिएबल का नाम है और वेरिएबल असाइंस द वैल्यू, राइट? सो कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं? तो ऑपरेटर में यूनरी होते हैं, बाइनरी होते हैं, टर्नरी होते हैं। अभी यूनरी मतलब सिंगल, यूनरी ऑपरेटर इज ऑपरेट विच ऑपरेट ऑन वन ऑपरेंड, एक ऑपरेंड होता है, दो नहीं, एक ही ऑपरेंड, मतलब एक वेरिएबल, वन ऑपरेंड वी आर यूजिंग। जैसे आई प्लस प्लस आई के आगे कौन है, बट आई प्लस प्लस आई का मतलब है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। गॉट इट? क्या बताया मैंने? प्लस प्लस आई का मतलब है आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस, मैंने के क्या है, आई इक्वल टू आई प्लस वन, दैट इज गिवन यूनरी। क्लियर? मतलब आई की जो भी वैल्यू रहेगी उसमें एक से वो इंक्रीमेंट करेगा। इज इट क्लियर? हेलो? यस? Yes, sir. या। सो बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? तो बाइनरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर विच ऑपरेट्स ऑन टू ऑपरेंड्स। बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है। देयर आर फर्स्ट वन, देयर आर दो वेरिएबल, अगर हम लोग का एडिशन करना है तो दो वेरिएबल वैल्यूज लगे, तो याद दिया a प्लस बी, उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेंड्स, टू आर देयर एंड ऑपरेटर यूज किया है प्लस, दोनों का मिला के हम लोग एक वेरिएबल में आंसर स्टोर कर सकते हैं या वेरिएबल का वैल्यू दिखा सकते हैं, उसे बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर विच ऑपरेट्स ऑन टू ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड्स की जरूरत है, दो वेरिएबल की जरूरत है, दो वैल्यू की जरूरत है। नेक्स्ट, टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर which operates on three operands। देखो टर्नरी में क्या हुआ, 1 2 नाउ 3 एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन है, ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योर माइक। हेलो, टर्नरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर which operates on a three operands, a, सॉरी मैंने लाइव में नहीं डाला है ना, दैट्स व्हाई लाइव में डाल देता हूँ। Yeah, now it is going on live. Unit. Okay, let's continue. वो लाइव पे जा रहा है, then you will see continue। चलो ला, we are continue again back to pavilion, कि हम लोग वापस स्टूडेंट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन वेलकम बैक डॉक्टर वासना अंबेडकर महाविद्यालय वसई वेस्ट, FIBSCIT फर्स्ट सेम इंपेरेटिव प्रोग्राम है। वेट, टू टाइम्स आवाज इको आ रहा है। Okay, second unit presented by Assistant Professor Bipin PYP। Okay, continue. We already shared that PDF file over there,
You can download that PDF and continue. Now again, I am just repeating that operators means what. Today we have to continue the all operators, introduction to operators. So operators are the symbolic element, symbol. हम लोग symbol लाते हैं, symbolic element which inform the computer to certain mechanical operation. This means आपको अगर कोई वैल्यू का एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना है और उस वैल्यू से हम लोग को कुछ कैलकुलेशन वर्क करना है तो हम लोग सिंबल का यूज करते हैं. प्लस ऑपरेटर होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है. So operator are the symbolic element which inform the computer to execute certain mathematical error and then we are doing the operation. Of course, मैंने बताया कंप्यूटर में ALU यूनिट होता है CPU, that is arithmetic unit. So it has to do the arithmetic calculation and logical calculation. Arithmetic means plus, minus, multiplication, division, and all. And logical means relational, greater than, less than, equal to, not equal to. Like that, operations are there. Some other comparisons related. So it is a symbol we are using on a certain data type and produces the result. So we are using that data type value and then we are creating the result output. So these expressions is generally formed with an operator and there are 8 categories. So what is operator using? So यहाँ पे बताए it can perform the operations. Okay. So operation, functions, variable, constant together we can say the expression. And that categories are there given: unary, binary, ternary. When you are using one operand, that time it is unary. When you are using two operand, that time we can say binary. When you are using three operand, that time more than two, that is ternary. Got it? Clear about that? Yes, student? Yes, sir. Okay. So see that now arithmetic operation in C. पहले देखो ये these are the operator we are using. Plus expression भी दिया है उन्होंने. A plus B minus A minus B, multiplication A into B, asterisk sign is there, slash divide, a division, A divided by B, percentage, that is modulus, remainder. We can find out the remainder value using that percentage symbol. These are all the performance we can do it as a arithmetic calculation. So arithmetic calculation के लिए मुझे ये सारे operator लगेंगे. These are used to perform mathematical calculation like addition, subtraction, multiplication, division, remainder, modulus in a C program. Example, चलो अभी हम लोग example के साथ में करने वाले हैं. You can start the, हम लोग जो सब पूरे प्रोग्राम जितने भी है वो एग्जाम्पल के साथ में करने. We are going to start all program, then turbo C, then after that we are going on turbo C7. We start the compiler, we use the new file, then after that we write there hash include what stdio.h, that is your header file which you use for input and output functions. Then hash include conio.h, that is for get ch and clear screen function we are using as a console input output. Then void main, that is a main function is always execute. It build a block of the statement. It build a block of the statement. Hello. Please mute your. Who is that? Okay. Yeah. Now we are going void main, that is it always execute the main functions. So we declare their variable. Inside that program it is different. It is they are declaring the constant variable and then after that they declare we have to input the value by the user. So I take the int, they are given int num1 comma int num2. They declare the values also. They assign the values also. I use to accept the value from the user. So I use a scanf after result. Okay, fine. So I use clear screen here. Clear screen, it clear the existing output screen area. And then after that, I start to give the message printout, enter two number values. Okay. Then after that, scanf. Then I use the percentage D. Then again percentage D.
that is two numbers we have to accept from the user, and num1 comma and num2, that is the user should enter the value when program will execute. After that we are doing the calculation. So what is they are given? Next one, result. First of all they assign the operator result num1 plus num2, right? So we are using that printf and write additions of two values. Okay, values is, yeah, two numbers is, say we लिख सकते two numbers is okay. What is the addition? Percentage d, and what we can directly write there, num1 plus num2. Yeah, otherwise we have to store the value, so we can give the result is equal to num1 plus num2, and then after that we write the variable here result. Got it? This way, first of all we process that part, store the value, whatever addition, this is the operator we are using, plus, and what values we are storing, num1 plus num2, that is addition of that two number, and store it in the result, and then result display over here. Clear? Same like that we are doing subtraction. I just copy, control insert, shift insert, again I come over here, shift insert, again I come over here, shift insert, again I come over here, shift insert, again I come over here and shift insert. So all operator, arithmetic operator, we will do it now. Okay, first upon plus operator, second time we use minus, and here we are writing subtraction, and then your result is created, subtraction of that two number, then multiplication. I write over there multiplication. Okay, now here we have to use the divide, so I write there division. Okay, then next, after that divisions there is a modulus, remainder, so I can get the remainder. Okay, these are all the thing, results are stored, so I said get ch. Okay, see that program first, तो program वैसे ही था, just they store the result and go on the next line. Each and every time they use the slash n, so I have to use their slash n, where each and every statement, so I can use here slash n also here, so it will move on the next line. After then slash n, after that slash n, after that slash n, then after that slash n, then slash n. Slash n means it move the cursor on the new line and output will show on the new line. Now I press Control F9. Error, one error is there. What the error? Missing semicolon. Where we have missed the semicolon? So this is the error part. We always get the error. See that statement missing. That means before that statement जहाँ पे दिखा रहा है उसके पहले वाले statement में end में semicolon use नहीं किए. So always end of the statement we are using semicolon. Okay, सेमीकोलन. लेकिन आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मेन में तो सेमीकोलन नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है क्या? नहीं, बिकॉज कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड, दैट मीन्स बिफोर दैट स्टेटमेंट डोंट यूज सेमीकोलन. लेकिन वो ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट में जितने भी स्टेटमेंट आते हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? सेमीकोलन से. लेकिन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ तो उसके पहले वाले स्टेटमेंट में सेमीकोलन नहीं रहे. दिस इज अ सिंटैक्स पार्ट. नाउ आई यूज द कंट्रोल F9, कंपाइल हुआ. आई यूज द टू नंबर 36 87, sorry 87 nahi, I use 23, enter. Now I got the all answers, addition of two number, subtraction of two number, multiplication of two numbers, division and remainder also. How they find the remainder? Who can say the remainder कैसे मिलता है? आप जब किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो उसके जो रिमेन वैल्यू हो जाती है नीचे जी हुए वो वैल्यूज रिप्रेजेंट कर. जैसे 4 डिवाइड बाई 3, तो 3 1 जा 3 और रिमाइंडर कितना आएगा? 1. 4 minus 3 रिमाइंडर 1 आएगा. Is it clear? Hello? Yes, student? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So that is your arithmetic operator. Now we will continue with your next part. Arithmetic के बाद assignment operator. What is that? Assignment. Listen about it. Clear?
दिस ऑपरेशन आर यूज टू असाइन द वैल्यू. ऑफ कोर्स अभी हम लोगों ने असाइन वैल्यू नहीं किया था, लेकिन यू कैन यूज लाइक असाइन. एक वैल्यू डिक्लेयर करना है, आई इक्वल टू 10. दैट मीन आई असाइन द 10 वैल्यूज. सेम लाइक दैट यहाँ पे भी दिखाई देगा सम इज इक्वल टू 10. दैट मीन सम असाइन द 10 वैल्यूज. लेकिन अगर से ये सिंपल असाइनमेंट हुआ, लेकिन अगर ऐसे लिखा है प्लस इक्वल, उसका मतलब है सम इज इक्वल टू सम प्लस 10. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सम में वी आर इंक्रीमेंट प्लस या वी आर इंक्रीमेंट बाय 10. ओके, प्लस इक्वल का मतलब है वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू बाय 10. ओके, तो सम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितना था 10. तो 10 plus 10 20 and then it is stored the sum values, sum assign 20. वैसे माइनस उल्टा डिक्रीज द वैल्यू. अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू 10 है और माइनस कर रहे हैं तो सम माइनस 10. अगेन व्हाट इज दैट? Now minus equal, that is sum is equal to sum minus 10. That means already existing value, if it is there 10, so 10 minus 10, sum stores the 0 value. Then multiplication, suppose already existing value 10, so 10 into 10, so it will become 100 and sum stores the 100 value. Same like division, 10 divided by 10, store the 1 and store the sum is equal to 1. I say remainder, after the and, after the exponent. So these are all the operators are there, assignment operator. We see the example now downside. They are given C assignment operator, how they are assigned. First of all, they declare one value. And after that, they can 8 is one value, it's a constant value. Constant के अंदर उसके अंदर क्या लिखा 8 लिखा. 8 के अंदर चेंजेस कब आएंगे? जब we are using the assignment. Assignment क्या यूज कर रहे हैं इधर? num1 plus equal to 2. That means num1 plus 2. Already existing num1 8 था, 8 plus 2 10 हो गया. तो num1 में अभी क्या स्टोर होगा 10. अब देख सकते हो नीचे आपको 10 आंसर मिलेगा. आफ्टर दैट that माइनस कर रहे हैं, माइनस इक्वल टू 2. दैट मीन num1 इज इक्वल टू num1 माइनस 2. ऑलरेडी अभी हम लोग को वैल्यू मिला था 10 और 10 माइनस 2 कितना मिला 8. अगेन इनटू किया, इनटू num1 ऑलरेडी अभी आया हुआ 8 है और उसका num1 इंटू 8 60. फिर उसके बाद डिवाइड बाई 2. डिवाइड बाई 2 में 16 था, 16 डिवाइड बाई 2 आंसर मिला 8. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल. प्रैक्टिकली हम लोग करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले. सो नाउ या सी दैट. नाउ स्क्रीन दिखाई दे रहे सब लोग को. हैश इंक्लूड std io.h hash include conio.h void main curly bracket open. We are declaring num1 is equal to 8, right? After that we are printf. क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले num1 हम लोग ऑपरेटर ले रहे हैं. क्या num1 के लिए हम लोग ने ऑपरेटर लिया 2 प्लस कर रहे हैं. तो num1 प्लस इक्वल दैट इज असाइनमेंट बाय 2. तो हम लोग देखते हैं प्रिंटफ में आंसर क्या. प्रिंटफ में नम वैल्यू उन्होंने डिस्प्ले कैसे किया वो देख लेते हैं. उसी तरह हम लोग डिस्प्ले भी कर लेते हैं. क्या डिस्प्ले दिया है? num1 इक्वल टू और स्लैश एन दिया है. हम लोग वो इसी तरह देखते हैं. अल्ट एंटर. डिस्प्ले पार्ट कोड्स के अंदर वो अपने ऊपर डिपेंड. num1 इज इक्वल टू %d और स्लैश एन मतलब न्यू लाइन कि नेक्स्ट लाइन में जाना है. और कॉमा में आंसर आएगा num1 ही दिखा. सेम लाइक दैट वी आर कंट्रोल इंसर्ट देन शिफ्ट इंसर्ट. अभी हम लोग को चाहिए num माइनस इक्वल टू किया आंसर चेंज होगा. जो चेंज होगा वो हम लोग को अभी दिखाई देगा. देन मल्टीप्लिकेशन किया तो num1 का वैल्यू चेंज होगा. डिवीजन किया तो भी वैल्यू चेंज होगा और मॉड्यूलस किया तो भी चेंज होगा. तो ऑल इट इज लाइक दैट. num1 प्लस इक्वल टू का मतलब है num1 इज इक्वल टू num1 प्लस 2. माइनस इक्वल का मतलब है num1 इज इक्वल टू num1 माइनस 2. इंटू का मतलब है num1 इज इक्वल टू num1 इंटू 2. डिवाइड का मतलब है num1 इज इक्वल टू num1 डिवाइड बाय 2. num1 मॉड्यूलस का मतलब है num1 इज इक्वल टू num1 मॉड्यूलस 2. तो लेट्स सी द आउटपुट. गेट ch करते हैं
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आउटपुट क्लियर करने के लिए ऊपर क्लियर स्क्रीन लिखते हैं, तो आपका प्रोग्राम्स हो गया, दिखाई दिया। ओके, नाउ वी कंपाइल, कंट्रोल F9, नाउ वी कैन सी द आउटपुट। पहले इसमें 8 वैल्यू था, उसका बन गया 10। कैसे? num1 इज इक्वल टू num1 प्लस 2। देन 10 वैल्यू मिला, तभी 10 का माइनस करना है, तो num1 माइनस 2, तो हो गया 10 माइनस 2 8। फिर आपने मल्टीप्लिकेशन किया, 8 इंटू 2 वो हुआ 16, फिर 16 डिवाइड बाई 2 वो हो गया 8, और लास्टली रिमाइंडर, आपको पता है रिमाइंडर 0 आया। क्यों रिमाइंडर 0 आया? कि डिवाइड बाई 2 करने के बाद, तो 8 डिवाइड बाई 2 करने के बाद रिमाइंडर क्या होता है? 0। ओके, डिवीजन या क्वेश्चन नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब 0, इट इज द मॉड्यूलस साइंस का यूज। गॉट इट? यस स्टूडेंट, हेलो। Yes, sir. यस, ओके, आई शेयर दैट स्क्रीन ऑल्सो। एक आपका जितने भी प्रोग्राम होते हैं आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, आई शेयर दैट वन। हम लोग ने अभी किया था, वो था एडिशंस ऑफ द 2 नंबर, या दिस वन। पहले प्रिंट स्क्रीन कर रहा हूँ और आपको तुरंत शेयर भी कर रहा हूँ, आप घर पे भी बाद में देख के आप आउटपुट निकालो। या मैं कैप्शन कुछ नहीं दे रहा हूँ, फटाफट करो। ओके, नेक्स्ट वन आपका F6 ये हुआ आपका अभी का प्रोग्राम। नाउ आई शेयर इट डायरेक्टली, मैं शेयर कर रहा हूँ, सी दैट नाउ। ओके, 2 प्रोग्राम्स आपके हो गए। नेक्स्ट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ, सॉरी असाइनमेंट हुआ, उसके पहले अरिथमेटिक कैलकुलेशन ऑपरेटर हो गए। अभी नाउ रिलेशनल ऑपरेटर। What is that operator? This operator are always used to find a relation between the two variable. दो वैल्यू को कंपेयर करना है, that is to compare two values. दो वैल्यू को कंपेयर करना है, तो मुझे ये ऑपरेटर यूज होते हैं। तो यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, देखो ये सॉरी दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, 2 बार इक्वल, नॉट इक्वल टू। अभी ये सब क्या करते हो? देखो, when you are writing the two variable values, suppose यहाँ पे 10 है और यहाँ 5, तो 10 greater than 5, yes it is true, that means t is a greater than, yes true। अगर false है तो false, right? greater than नहीं है, suppose 2 greater than 10, no false। तो ऐसे दो वैल्यू को साइन करके हम लोग को एक आंसर मिलता है, ट्रू और false, that is compare the two value and then we are getting the answer true or false। next, वैसे less than, t less than s, that means t is less than s, true, otherwise s less than t, तो दिस इज फॉल्स वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट, वैसे ही देखो लेस देन में क्या होता है, अगर मैंने कंपेयर, यहाँ पे मैं नंबर वैल्यू डाल देता हूँ, यहाँ पे 10 लेस देन 2, 10 लेस देन 2 है क्या? नहीं है, फॉल्स। तो यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में फर्क ये है, अगर मैंने लिखा 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 10 ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या है कि अगर 10 इक्वल टू भी रहेगा और ग्रेटर देन भी रहेगा 2 से, तो वो समझ में, 10 इक्वल एंड ग्रेटर है, जैसे 12 रहेगा, 14 रहेगा, तो भी ट्रू आएगा और इक्वल रहेगा। यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 2 में क्या होगा? ओनली ग्रेटर देन, मतलब 11 से स्टार्ट करेगा, 10 इक्वल टू रहेगा तो वो ट्रू नहीं। इज इट क्लियर? हेलो, यस स्टूडेंट, हेलो, Yes, sir. या वैसे ही लेस देन इक्वल टू 10, 2 लेस देन इक्वल टू 10, इसका मतलब 2 इक्वल टू और 2 लेस देन रहेगा, 1 2 0 माइनस वो चलेगा, लेकिन 2 इक्वल टू होगा। लेकिन अगर हम लोगों ने 2 लेस देन 10 किया तो उसमें 2 के वैल्यू को नहीं देखेगा, वो 1 से स्टार्ट करेगा, 1 0 माइनस लाइक दैट। now equal to 10 equal to equal to 10, so t is equal to yes, that means true, otherwise आगे नॉट इक्वल टू, नॉट कैसे लिखा है देखो, एक्सप्लेनेशन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। चलो सारे कंपैरिजन के लिए एक उन्होंने एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल का यूज करेंगे और हम दो वैल्यू लेंगे या दो नंबर ले रहे हैं और फिर कंपेयर करेंगे और फिर आंसर लिखेंगे। व्हाट इज, हाउ दे आर फाइंडिंग दैट आंसर, देखो रिटर्न ट्रू और फॉल्स और व्हाट, रिटर्न 0, रिटर्न 1, रिटर्न 0, रिटर्न 1, रिटर्न 0, रिटर्न 1, ऐसे करके उन्होंने दिया है।
लेकिन हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते कि इसका आंसर क्या है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम लोग को 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स, ऐसा आंसर आने वाला है। ओके, हम लोग रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स। देख लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग थर्ड एग्जांपल। हैश include stdio.h, then hash include conio.h, void main, okay, then curly bracket, दो नंबर ले रहे हैं int num1 इक्वल टू, दे असाइन द सम वैल्यूज। क्या असाइन किया है उन्होंने, देख लेते हैं। num1 में क्या असाइन किया है, 11, और num2 में 27। तो उन्होंने डायरेक्ट असाइन किया है, तो हम लोग 11 वही करते हैं, 11 और num2 में कॉमा, num2 में इज इक्वल टू 27। देन आफ्टर दैट डायरेक्टली उन्होंने प्रिंटफ में ही डायरेक्ट वैल्यू दिखाया है। पहले इसमें लिखा है num1 इज इक्वल टू %d, ओके। फिर उसके बाद देखो वहां पे डिस्प्ले कैसे किया है, देखो ना, डिस्प्ले दिया है %d इक्वल टू d इज इक्वल टू ट्रू एंड देन num1, हम लोगों ने num1 करके लिखा है। ठीक है, चलो ऐसे भी देख सकते हैं, कोई और नहीं है। num1 इज इक्वल टू %d, ओके। उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर में दो वैल्यू, अगर लेस देन है, ग्रेटर देन है, क्या है वो हम लोग को देखना पड़ता है। अगर लेस देन %d दैट इज num2, ओके, हम लोग ऐसे लिखे। फिर आंसर क्या मिलेगा, पर्सन इज इक्वल टू %d, ट्रू और फॉल्स। हम लोग लिख रहे हैं पहले इसमें num1, दूसरे इसमें num2, और तीसरे इसमें कंपेयर किया हुआ वैल्यू num1 क्या लिखेंगे, लेस देन num2, वो चेक करेंगे एंड देन ब्रैकेट। ठीक है, इतना आंसर क्या आता है वो देखते हैं और देन वी कैन कंटिन्यू। क्या आंसर मिला, 1। एक मिनट, क्लियर स्क्रीन नहीं किया, क्लियर स्क्रीन, ओके। नाउ एक आंसर क्या मिला, आंसर 1। 11 इज लेस देन 27, 11 is less than 26, hello, answer is, hello, hello, Yes, sir. answer is what, you give me answer, don't say yes sir only. 11 less than 27 means answer is, hello, give me -16. answer। अरे 11 लेस देन, माइनस माइनस बताया कि यार देखो ना, 11 लेस देन 27, सो आंसर इज 1। 1 मतलब ट्रू। क्या 11 नंबर वैल्यू 27 से कम है कि नहीं है, हेलो, है सर। हाँ, ओनली यस सर आंसर नहीं मिल रहा है। 11 लेस देन 27 आंसर इज 1. 1। 1 मीन्स ट्रू, 1 मीन्स ट्रू, ओके फाइन, ऐसा आंसर है, 1 मीन्स ट्रू, ओके। तो अब आप यस सर बोलोगे तो आंसर क्या यस सर रहेगा क्या, कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट। नाउ वी आर यूजिंग ग्रेटर देन, सेम, खाली यहाँ पे सिंबल चेंज किया ग्रेटर देन, यहाँ पे भी सिंबल चेंज कर रहे हैं ग्रेटर देन। नाउ यू कैन सी दैट आंसर इज, नेक्स्ट आंसर num1 11 ग्रेटर देन num2 इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू क्या आया, 0। 0 मतलब, 0 मतलब फॉल्स, वेरी गुड। इस तरह आंसर कंपेयर हो रहा है, समझ गए। कंपेयर का आंसर क्या है, आइदर 1 और आइदर और 0, आइदर 1 और 0 मतलब 1 मतलब ट्रू और 0 दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अगेन हम लोग दूसरा कंपेरेटर है, अगर हम लोगों ने नंबर परसेंटेज में लेस देन एंड इक्वल टू दिया, लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है, आगे ग्रेटर देन इक्वल टू, शिफ्ट इंसर्ट, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। आपको ये तो डिस्प्ले पार्ट है, जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो डिस्प्ले पार्ट है। एक्चुअल में कंपैरिजन यहाँ हो रहा है, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, उसका आंसर आपको ट्रू और फॉल्स दिखाएगा। नाउ आंसर इज, देख सकते हो num 11 1, वो पहला लेस देन का 1 आया, ग्रेटर देन का 0 आया, 11 लेस देन 27 1, फिर 11 ग्रेटर देन 27 फॉल्स, फिर 11 लेस देन 27 1 ट्रू,
लेस देन एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन फॉल्स, दोनों का आंसर सेम आया, बराबर है? यस स्टूडेंट, हेलो, यस यस, ओके फाइन। चलो आगे, अभी लेस देन के इक्वल इक्वल टू मतलब क्या, कंपेयर, दोनों वैल्यू सेम है क्या? सेम है क्या? वैल्यू चेंज करके भी हम लोग देखने वाले हैं दोनों वैल्यू। और एक नॉट इक्वल टू, दूसरा उल्टा आएगा ना, ट्रू और फॉल्स जैसा। दूसरा इक्वल इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल है, तो हम लोग दोनों कंपेयर करके देखते हैं। नॉट इक्वल टू, देखो यहाँ ऑपरेटर सारे यूज कर रहा हूँ, रिलेशन, कंट्रोल एफ में क्या आंसर मिला, एक स्लैश एन नहीं दिया ना, स्लैश एन, स्लैश, ओके फाइन। नाउ सी द आउटपुट। 1 पहला आंसर आया 11 लेस देन 27 ट्रू, 11 ग्रेटर देन 27 फॉल्स, 11 लेस देन इक्वल टू 27 ट्रू, 11 greater than equal to 27 false, 11 equal to 27 false, 11 not equal to 27 true. Got it? Yes student, yes, Yes, sir. ओके। कंपेयर कैसे करके देखा, समझ में आया? अभी वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं, हम लोग लिखते हैं 11 11, दोनों 11, तो मुझे बता इक्वल इक्वल टू में क्या आंसर मिला? इक्वल इक्वल टू में, हेलो, ट्रू। ट्रू, 1 2 1 आया। और नॉट इक्वल टू में क्या आया? 0 फॉल्स। False. False. और ऊपर देखो लेस देन 11 लेस देन 11 में क्या आया आंसर? False. फॉल्स, फॉल्स आया ना, क्योंकि कंपेयर हो रहा है ना लेस देन, लेकिन लेस देन इक्वल टू में क्या आया? ट्रू। या, True. एंड ग्रेटर देन इक्वल टू में भी ट्रू। समझ में? लेस देन इक्वल टू का भी डिफरेंस क्या है, और ग्रेटर देन इक्वल टू का और लेस देन, इसका डिफरेंस समझ में? ओनली सिंगल डे इक्वल टू का मतलब वो कंपेयर इक्वल वैल्यू से भी कर रहा है और लेस देन से भी कर रहा है, या ग्रेटर देन से ही कर रहा है, इक्वल टू, ऐसे दो अलग अलग ग्रेटर देन और ग्रेटर देन में कंपेयर होता है। ओके, लेस देन और लेस देन इक्वल टू इज डिफरेंट, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू इज डिफरेंट। गॉट इट? यस स्टूडेंट, हेलो, यस सर। Yes, sir. ऑल कंपैरिजन समझ में आया? ऑल वैल्यूज, ओके फाइन। सो ये भी मैं प्रिंट स्क्रीन करके आपको पास भेज देता हूँ तुरंत व्हाट्सएप पे। ये वो आपका रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा प्रोग्राम। ओके, चलो आगे जाते हैं, कंटिन्यू। रिलेशनल होने के बाद लॉजिकल ऑपरेटर, व्हेन वी आर गिविंग टू कंडीशन एट अ टाइम, so we want to join that two condition and true or false, false or true, or dono true, dono false, like that we have to compare. So this operator always used to perform logical operation. There are three logical operation: and, or, not. लिखते कैसे देखो, and operator, डबल एंड, शॉर्टकट एंड है 7 नंबर का, शिफ्ट की से 7 नंबर, और पाइप साइन है, जेड के बाजू में रहता है या दो शिफ्ट की के बाजू में रहता है, और साइन, फिर नॉट साइन, एक्सप्लेनेशन। ओके, ये दो अलग अलग कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया है उन्होंने, देखो क्या दिया है, x ग्रेटर देन 5 एंड y लेस देन 5, दो कंडीशन है। अगर हमारा x ग्रेटर देन 5 होगा एंड y लेस देन 5 होगा तो ही ट्रू, इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ कंडीशन आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट, और में क्या होगा, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, मतलब ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, लेकिन दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, तो इट रीड ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट, लॉजिकल नॉट में क्या होगा, एक्सप्लेनेशन नॉट वाला, मतलब नॉट, इट रिवर्स द स्टेट ऑफ द ऑपरेंड, जो लिखा होगा x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 5, ये दोनों का नॉट, नॉट x ग्रेटर देन 5 भी नहीं है, y लेस देन 5 भी नहीं है, तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। उल्टा, मतलब कोई भी आप कंडीशन इधर देते हो उसका उल्टा अपोजिट करेगा, इट रिवर्स द स्टेट ऑफ द ऑपरेंड, रिवर्स करेगा, नॉट, निगेशन। ठीक है, चलो देख लेते हैं कंपेयर करके लॉजिकल ऑपरेटर भी। लॉजिकल ऑपरेटर के लिए इधर उन्होंने दो कंपेयर किया है और बताया, नंबर 1 में 22 लिया है, नंबर 2 में 27 लिया है, नंबर 3 में 11 दिया है, और रिजल्ट देखा हुआ है। चलो देख लेते हैं प्रोग्राम, चलो देख लो ना, कंट्रोल एंटर, फाइल न्यू, F5 hash include stdio.h hash include
conio dot h void main curly bracket. Now they are writing int num1 comma int continue num2 num3 num1 में उन्होंने कुछ वैल्यू असाइन किया है 22, num2 में 27, फिर num3 में 11 एंड देन रिजल्ट. ओके, देन आफ्टर दैट कोडिंग देखा क्या किया है. अभी उन्होंने डिस्प्ले देखते हैं क्या डिस्प्ले दिया है. num1 की वैल्यू दिखाया है, num2 की वैल्यू दिखाया है, num3 की वैल्यू दे और फिर एंड ऑपरेटर. पहले वैल्यू दिखाया तो वैल्यू दिखाते हैं हम लोग और फिर बाद में हम लोग कंपैरिजन करते हैं. तो printf num1 is equal to percentage d slash n, num2 is equal to percentage d slash n, मतलब न्यू लाइन आएगा. num3 is equal to percentage d then comma num1 num2 डिस्प्ले कर रहे हैं, एक्सेप्ट द वैल्यू नहीं कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं. ओके हो गया. फिर लॉजिकली क्या कर रहे हैं वो लोग देख लेते हैं. लॉजिकली व्हाट दे आर यूजिंग, दे आर कंपेयरिंग. रिजल्ट के अंदर दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, num1 को num2 से, फिर num1 को num3 से कंपेयर कर रहे हैं एंड दे आर रिजल्टिंग व्हिच इज द ग्रेटर दैन. ओके, सो रिजल्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे रिजल्ट दोनों. रिजल्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर पहले num1 को कंपेयर कर रहे हैं num2 से, फिर एंड. ओके, ब्रैकेट ओपन बंद कैसे किया है, डायरेक्टली किया है, क्या किया है वो देख लेते हैं. यस, ब्रैकेट बंद किया है और फिर अनदर ऑपरेटर उन्होंने दिया. तो हम लोग ब्रैकेट बंद करते हैं एंड देन यूज अनदर कंडीशंस, यानी कि वापस एक ब्रैकेट आएगा रिजल्ट के अंदर. ओके, सो यहाँ पे और एक ब्रैकेट एंड कंपेयर क्या कर रहे हैं, अगेन ब्रैकेट के अंदर num1 को कंपेयर कर रहे हैं num3 से, मतलब दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में स्टोर होगा. एंड देन प्रिंटफ हम लोग बताएंगे क्या प्रिंटफ किया है उन्होंने, कि रिजल्ट 1 ग्रेटर है कि 2 ग्रेटर है, वो ऐसे दिखाएंगे. क्या दिखाया उन्होंने, num1 2 एंड num1 2 इट इज ग्रेटर देन रिजल्ट. अच्छा, वही कंपेयर किया है कि num1 और num2 num3 में ग्रेटर देन कौन है, तो दिखा रहे हैं वो लोग. अगेन वही कॉपी करते हैं. डिस्प्ले पार्ट है ना, तो डिस्प्ले पार्ट इसके अंदर सेम शिफ्ट इंसर्ट, वो रेड कलर में आया मतलब वो डिस्प्ले पार्ट. ओके, देन आफ्टर दैट वी आर डिस्प्लेइंग इज इक्वल परसेंटेज डी रिजल्ट, और रिजल्ट में कंपैरिजन वैल्यू क्या होगा लॉजिकल का वो दिखाएं. चलो इसका आंसर देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वन करना. चलो गेट ch क्रैकेट क्लियर स्क्रीन एंड देन एक का आउटपुट देखते हैं, फिर कंपेयर. आंसर आया 0. कैसे, क्या आंसर 0 आया, कौन बताएगा 0 कैसे आया. num1 की वैल्यू क्या है 22, num2 की वैल्यू क्या है 27, num11. हम लोगों ने कंपेयर किसको किया है, num1 को. num1 इज ग्रेटर देन num2, आंसर क्या है, फॉल्स है कि ट्रू है, फॉल्स. 22 ग्रेटर देन 27, फॉल्स. एक कंडीशन फॉल्स आया एंड में क्या हो गया, आंसर क्या आया, फॉल्स. बराबर ना, एक कंडीशन भी फॉल्स हुआ तो आंसर आपका पूरा रिजल्ट का आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स. सो दैट इज गिवन. num1 से कंपेयर करने के बाद ही आंसर फॉल्स हुआ, आगे के कंडीशन में उसको जाने की जरूरत. फिर भी देन कंपेयरिंग num1 ग्रेटर देन 3 अगर है तो वो ग्रेटर है, पर सेकेंड कंडीशन इज ट्रू बट फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स. ये कंडीशन फॉल्स है, इसीलिए हमारा रिजल्ट क्या आया, फॉल्स. गॉट इट. अभी सेम थिंग हम लोग और क्या इसमें देखेंगे, और कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट. अभी और में क्या होता है, एंड की जगह और लिख रहे. और कैसे, पाइप साइन. देखो पाइप साइन दिखाई दे रहा है, कोलन कोलन की तरह पाइप साइन होता है. पाइप डॉट डॉट डिफरेंट है, कोलन ये डिफरेंट है, और डॉट डॉट कोलन इज द स्कोप रिजोल्यूशन. याद, चलो कंपेयर करके क्या है देख लेते. पहले इसमें आंसर मिला 0, लेकिन सेकेंड इसमें आंसर मिला ट्रू. क्यों, कौन बताएगा. सॉरी ये और नहीं लिखा मैंने. चलो स्लैश एन भी कर लेते हैं, मतलब वो आगे के इसमें चला जाएगा. स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन. चलो आगे. नाउ कंपेयर क्या हुआ, पहले इसमें आंसर 0 मिला, एंड के
लॉजिकल ऑपरेटर में आंसर 0 मिला, लेकिन और के आंसर में ट्रू मिला, क्यों? कौन बताए? ये स्टूडेंट 22 से बड़ा है। देखो, पहला आप कंपेयर करो ना, नम वन ग्रेटर देन, हेलो हु इज दैट? कंपेयर देखो, num 1 greater than num 2, answer is false. num 1 greater than num 3, answer is true. and ऑपरेटर में, लॉजिकल एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होना कंपलसरी है, बोथ कंडीशंस आर ट्रू तो ही आंसर ट्रू होता है। लेकिन यहाँ आंसर एक ट्रू है एक फॉल्स है, पहला फॉल्स मिला दूसरा ट्रू मिला, इसलिए उसने आंसर क्या दिया? फॉल्स दिया। लेकिन और में क्या है? एनी वन कंडीशन, एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, तो आपको num 1 ग्रेटर देन num 2 फॉल्स मिला, लेकिन num 1 ग्रेटर देन num 3 मिला, इसलिए उसने क्या किया? आंसर ट्रू दिया। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट, हेलो, अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके फाइन, थैंक यू। नेक्स्ट, उसके बाद आपको नेक्स्ट वन ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। क्या है? नॉट। तो नॉट में उन्होंने इक्वल टू वैल्यू से कंपेयर किया। देखो, इक्वल टू num 1 इज इक्वल टू num 2, नॉट इक्वल टू num 2, ऐसे हम लोग देख लेते हैं। printf, यहाँ पे हम लोग पहले रिजल्ट स्टोर कर लेते हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू नॉट num 1 इक्वल टू num 2, ओके। और फिर यहाँ पे भी लिखते हैं हम लोग printf नॉट इक्वल टू num 1 इक्वल टू num 2। सो हम लोग को पर इक्वल परसेंटेज डी क्या आंसर मिलेगा? कॉमा रिजल्ट ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल F9। नाउ वी कैन सी दैट आंसर ट्रू। कैसे क्या आंसर ट्रू मिला? इक्वल टू num 1 इक्वल टू num 2 है क्या? 22 इज इक्वल टू 27? नो। नो, इसीलिए आंसर का ट्रू क्यों मिला? क्योंकि आगे देखो क्या लिखा है, नॉट। हम लोग का अगर 22 इक्वल टू 27 नहीं रहेगा तो आंसर ट्रू आएगा, बराबर। अगर मैं नॉट निकाल देता, ये नॉट निकाल दिया, तो आंसर क्या मिलेगा? अभी फॉल्स। नॉट निकाला ना मैंने, देखो ये नॉट निकाल दिया, तो आंसर क्या मिला मुझे? फॉल्स। लेकिन अगर नॉट लिखा मैंने, नॉट लॉजिकल नॉट लिखा, तो मुझे आंसर क्या मिला? आंसर क्या मिला? ट्रू। गॉट इट? यस स्टूडेंट, लॉजिकल एंड लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। यस सर। ओके फाइन, चलो एक वो आपका नेक्स्ट प्रोग्राम्स कंप्लीट। अभी मैं प्रिंट स्क्रीन करता हूँ और आपके इसमें तुरंत भेज लें। मैं क्यों भेज रहा हूँ? ताकि आपको डिफिकल्टी आएगी तो मेरा प्रोग्राम देख के आप कंटिन्यू कर सकते, ठीक है? दैट्स नेक्स्ट। नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विथ योर बिट वाइज ऑपरेटर। ये थोड़ा अलग ऑपरेटर है बिट वाइज। आपको पहले पता है कि बिट क्या है? बाइनरी डिजिट्स 0 and 1, सबको पता है। कंप्यूटर नोज ओनली 0 and 1। 0 means yes, computer knows binary digits language, binary digit bits। तो वो बिट्स के अंदर आप देख सकते हो कि आपको 001100 दिखाई दे रहा है, तो 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। तो दिस ऑपरेटर यूज्ड टू परफॉर्म द बिट ऑपरेशन। तो बिट वाइज ऑपरेटर का मतलब ही हुआ कि हम लोग को बिट्स से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन करने हैं। तो हम लोग को कंपैरिजन, जैसे हम लोग को फिजिक्स वगैरह में लॉजिकली आप लोग को सिखाया जाता है, और नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, वैसा ही यहाँ पे दिया हुआ है सेम। ओके, फिजिक्स में आपका किसी का साइंस स्टूडेंट है, फिजिक्स के अंदर ये नॉट गेट, एंड गेट, या कंप्यूटर साइंस है तो उसमें अंदर हो ही चुका है। ओके, तो वही बिट ऑपरेशन यहाँ समझा है। तो डेसिमल वैल्यूज आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी वैल्यू। जो भी आप नंबर लिखते हो, सो वो 10 नंबर्स लेगा, तो 10 नंबर्स को कन्वर्ट करता है वो zeros and ones में। So these values are converted into bit binary digits which are the sequence of bits। वो सीक्वेंस होता है, आपको पता है एक कैरेक्टर कितना सीक्वेंस होता है? 1 कैरेक्टर 8 बिट्स। कितना? 8 बिट्स। 8 बिट्स मतलब 1 बाइट। वैसे ही यहाँ पे डेसिमल वैल्यू आपका जैसे सपोज 1 रहेगा तो 001 004 बिट्स में 0001 या 00000001 दिया 8 बिट्स में।
फिर आगे 2 हुआ तो 0 0 0 0 0 0 1 0, दैट इज दैट। तो ये सारी चीजें आप लोग को बिट वाइज ऑपरेशन समझा रही। तो वहां पे बिट वाइज ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज आर एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो सबसे पहले एंड, मुझे बताओ आपको ऑलरेडी एंड ऑपरेटर पता है क्या होता है, दोनों ट्रू रहेंगे तो ये आंसर ट्रू होगा, पता है ना एंड में। यहाँ देखो x एंड y, इन्होंने दो वैल्यूज दिए, x के अंदर y के अंदर, पहले इसमें फॉल्स फॉल्स दोनों जीरो है, और में क्या होता है, और में दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स, कोई भी एक ट्रू रहेगा तो ट्रू। देखो आप देख सकते हो और साइन, दिस इज और साइन, और में क्या होगा, एटलीस्ट एनी वन ट्रू, आंसर इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू, बोथ आर ट्रू देन ट्रू, लेकिन बोथ आर फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। एंड में क्या होता है, एंड में बोथ आर ट्रू और ऑल फॉल्स, इट इज फॉल्स, तो ऑल फॉल्स, ओनली बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू। एक्सॉर का उल्टा होता है, एक्सॉर में बोथ आर ट्रू एंड बोथ इज, एक्सॉर में क्या होगा, both are true and both are false, it is false. Any one true, one true, one false, one false, one true, that is means true. Got it? Yes student, hello, सारे ऑपरेटर समझ में, एंड और, ओके या। उसी तरह निगेशन, निगेशन मतलब नॉट, जो ट्रू रहेगा, नॉट में कैसे ट्रू रहेगा वो फॉल्स, वैसे इधर भी ट्रू, 0 का 1 होगा, 1 का 0 होगा। अभी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी बता रहे, तो आगे आपको कुछ कंडीशन से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। दे आर गिवन द वैल्यू 40 एंड 80, हाउ दे आर रिटर्न 40 एंड 80, थोड़ा सा ये चीज है ना, मैं नोट में आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि बिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि आगे जाके, ऑलरेडी आपके कौन सा सब्जेक्ट चालू है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चालू है, यस कौन सा सब्जेक्ट चालू है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चालू है क्या, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उसमें नंबर कन्वर्जन आ रहे होंगे, आ रहे हैं क्या, यस sir. वेरी हो गुड, भी गया सर। हाँ वेरी गुड। तो उस कंपेयर के वैल्यू से मैं यहाँ पे आपको एक सिस्टम सिखा रहा, देखो 8 4 2 1 दिखाई दे रहा है, हेलो स्टूडेंट, Yes, sir. या मैं ये वर्ड में बताता हूँ, वर्ड में टेबल में फटाफट समझ, आई यूज दैट वर्ड, आपको समझाता हूँ 8 बिट्स का मतलब क्या होता है, तो फटाफट आपको समझ में आएगा लॉजिकली हाउ वी कैन यूज इट। Yeah, see now I am using that insert टेबल, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा वो नंबर दिखाने हैं, 4 और 8 नंबर दिखाने हैं, तो मुझे 8 नंबर के लिए मैं ये ले रहा हूँ। ये आगे के छोड़ो, 64 में 8421 सिस्टम है, 8421, ये क्या बता, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, सॉरी बाइट बताओ, 1 बीट, 2 बीट, 4 बीट, 8 बीट, आगे आएगा 16 बीट, आगे आएगा 32 बीट, आगे आएगा 64 बीट, आगे आएगा 120, ऐसे ही करके आगे 256, 512, 1 GB एंड ऑल, राइट, ओके फाइन। चलो ये तो पता चला आपको। अभी आगे सपोज मैंने चारों जगह पे, सब जगह पे 0 डाला, आंसर्स क्या आएगा मेरा, रिजल्ट, हाँ ये रिजल्ट है, यहाँ पे राइट क्लिक, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, और यहाँ लिखता हूँ मैं रिजल्ट, क्या मिलेगा रिजल्ट मुझे, 0, आंसर इज 0, बराबर नंबर। सपोज मेरा 1 बिट ऑन हो गया, 1 बिट ऑन, बाकी सब 0, तो मुझे आंसर्स क्या रहेगा, मेरा आंसर 1, ओके। मेरा 2 बिट ऑन रहेगा और बाकी सब 0, आंसर क्या मिला देखो, 0 0 1 0, दिस इज 2। अभी 3 तो कैसे दिखाएंगे, 2 ऑन एंड 1 ऑन, 2 + 1, 2 + 1 3. ये हुआ 3, बाकी सब 0, ओके। नाउ 4 इज ऑन, ऑलरेडी 4 बिट है, 4 इज ऑन, बाकी सब 0, देखो आंसर मिला 0 1 0 0, दैट इज 4। नाउ 5, 1 इज ऑन, 4 is on and 1 is on, 4 + 1, 4 + 1
4 plus 1 Five. 5. तो 1 0 1 0 1, राइट? नाउ यू गॉट इट. लॉजिक क्या कर रहा हूं मैं? सर ये नहीं समझा. नहीं समझा? वेरी गुड. आप लॉजिकली सोचते ही नहीं, खाली देखते रहते हो. अरे यहाँ 1 बिट में मैं 1 ऑन कर रहा हूँ, 2 बिट में 2 ऑन कर रहा हूँ, 4 बिट में 4 ऑन कर रहा हूँ. अगर 8 आएगा तो 8 बिट में मैं ऑन करूँ. सपोज अभी 7 चाहिए मुझे, तो 7 का मतलब क्या होगा बताओ, आप ही बताओ. मैथ्स आता है कि नहीं? 7 का मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ. ऐड करना पड़ेगा. 4 plus 2 plus 1. कुछ समझ में आया? हेलो. यस सर. या दो 4 2 भी ऑन 1 भी ऑन. 4 plus 2 plus 1 क्या हुआ? 4 plus 2 plus 1 क्या हुआ? 7. तो मेरा आंसर क्या मिला मुझे यहाँ पे? 7 मिला. लेकिन अगर मुझे 6 दिखाना है तो मुझे बताओ 6 दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेलो. 4 plus 2. 4 plus 2. चलो इधर मुझे सपोज इधर ऊपर मुझे 6 दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 plus 2 मतलब 4 में 1, यहाँ 1, बाकी सब क्या? 0. 0. इसका मतलब 4 plus 2 का आंसर मुझे क्या आ रहा है? 0 1 1 0. अंडरस्टूड? अभी 8 बोलो. चलो 8 कौन बताएगा? 8 खाली 8 के कॉलम में 1 बाकी 1 बाकी सब 0. वेरी गुड. नाउ यू अंडरस्टूड. 9. चलो 9 बोलो. 8 plus 1. 8 plus 1. 8 और 1 तो बाकी इधर 4 के इधर 0, 2 के इधर 0. बराबर? यस. नाउ 10 बोलो फटाफट. 8 के इधर 8 plus 1, 2. 8 plus 2. 2. 8 plus यस. 2. मतलब 1 0 1 0. 11. चलो 11 बोलो. 1 plus 2 plus 8. यस. 8 4 के इधर 0 1 1 1 0 1 1. दिस इज 11. 12 1 1 0 8 plus and 4. 0 2. बराबर? 8 plus 4 13 1 8 plus 4 1 plus 0 1. 1. यस. वेरी गुड. अभी आपको क्लियर समझ में आया होगा. लेकिन अगर 15 हो गया, 15 अभी मैं 15 तक जाता हूँ. 16 होने के बाद आगे कितना? 13. 13 के बाद कितना होगा? 14. चलो 14 बोलो. 1 1 1 0. बराबर है? नेक्स्ट 8 plus 4 plus 2 15. चलो 15 बोलो. 8 plus 4 सब में plus 2 सब में 1 मतलब 15 आ गया. अभी आगे 16 है तो क्या करोगे आप बोलो? 16 में 1. इसमें 16 में 1. 16 में इधर किधर? सब 1 हो गया ऑलरेडी. अभी 16 में किधर करोगे? बोलो 16 इधर है नहीं. 16 में इधर 1 आएगा और बाकी सब 0. बराबर ना? समझा अभी क्या हुआ है? नाउ यू गॉट इट. तो आगे इधर क्या आएगा? 0 0 0. बट अभी 16 के लिए अगर हम लोग इस तरह अभी अगर 2 नंबर ले रहे हैं 40. अभी इधर थोड़ा बुक में अलग है. आपको पता है. ये समझ में आया क्या आपको? 8 4 2 1 सिस्टम वाला 32 रहेगा तो इधर 1 आएगा, 64 रहेगा 1 इधर. ऐसे हम लोग एक कंपेयर वैल्यू ऐसे ही वो वैल्यू एक्चुअली 8 बिट का होता है. तो आगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आया समझ में? आगे 0 0 0 ऐसे लगता है वैल्यू 8 बिट्स में. तो अभी यहाँ पे 40 आया हुआ. तो 40 उन्होंने लिखा कैसे है वो आपको समझाने के लिए आपको बता रहे कि क्या हो रहा है. अभी ये 40 मतलब आप समझ सकते हो कि क्या आ रहा होगा. आप खुद बोलो 40 लगाना है मुझे, इधर 40 लेना है. क्या करना पड़ेगा? 32 plus 8. 32 plus 8. Very good. Who is that? Who will give the answer? Sir, मैं मतलब कौन? नंबर नाम बोलो. हेलो. Hello. Hello. Who give the answer? Rishabh, sir. Rishabh. Very good. Now you understood. 32 plus 8 40. देखो क्लियर. इसीलिए उसका वैल्यू क्या आया? आगे 0 आगे 0. 32 में 1 0, 8 में 1 और बाकी सब 0. तो आपका आंसर मिल रहा है 40. देखो बुक के अंदर भी क्या दिया? 0 0 1 0 1 0 0 0. Got it? Yes student. Yes, sir. Yes, sir. कंपेयर. अभी आप कोई भी वैल्यू लेके ऐसे निकाल सकते हो. यस Yes. यस स्टूडेंट. 80 निकालना है. 80 के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी इधर मुझे 80 के लिए बोलो क्या करना पड़ेगा? 64 लेना 64 plus पड़ेगा. 64 plus 16. 16. वेरी गुड. 64 plus 16. तो मुझे 64 इधर डालना पड़ेगा और फिर 16 में 1 करना पड़ेगा और बाकी सब 0. तो आपका आंसर भी मिल जाएगा. देखो 0 1 0
1 और बाकी सब देखो 0 1 0 1 बाकी सब 0। गॉट इट? यस स्टूडेंट, हो गया? क्लियर हो गया? अभी मैं बिट वाइज ऑपरेटर बता सकता हूँ। एक्स एंड वाई, ये बाइनरी में डेसिमल का कन्वर्जन और फिर उसका कैलकुलेशन। समझ में आया? अभी उसका कैलकुलेशन, ये आने के बाद उसका कैलकुलेशन होगा। और एंड, एक्सऑर, पहले वो कन्वर्ट किसे में करेगा? डेसिमल वैल्यूज आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, then that is sequence on, then bitwise operator work on these bits. Clear? Yes student? Hello? Yes sir. Yeah, so that is clear about that. अभी एक लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर बताए, वो क्या काम करता है बताओ? इन अ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन x less than 1, that is shift operator. It 1 means that the bits will be left shifted by one place. लेफ्ट साइड में एक बिट शिफ्ट होगा, बराबर? एक बिट मतलब एक खाली इधर 0 रहेगा तो 1 एक इधर बढ़ जाएगा लेफ्ट साइड, यहाँ 1 आएगा तो 1 यहाँ आ जाएगा और आगे कंटिन्यू इन सीक्वेंस वाइज चेंज होगा। समझ में आया क्या बता रहा हूँ? एक बिट, एक मीन्स वन मीन्स दैट द बिट्स विल बी लेफ्ट शिफ्टेड बाय वन प्लेस, एक प्लेस से। अगर 2 लिखेंगे तो 2 प्लेस से जा, देन इट मीन्स द बिट्स विल बी लेफ्ट शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस। यहाँ जितने नंबर लिखेंगे उतने नंबर से वो बिट क्या करेगा? लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा या राइट साइड। 2 ऑपरेटर है हमारे पास, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। जैसे आप इधर देख सकते हो 1 शिफ्ट हुआ है, तो आपका 80 का आंसर क्या था? 80 का आंसर क्या था? देखो 0101, और यहाँ पे उन्होंने 80 डेसिमल दिया हुआ है, तो अगर उन्होंने लेफ्ट शिफ्ट किया तो आंसर क्या मिलेगा मुझे बताओ? ये 1 इधर जाएगा, ये 0 इधर जाएगा, 1 प्लेस से शिफ्ट होगा ना, बराबर ना? 1 प्लेस से शिफ्ट होगा। गॉट इट? समझ में आया? वैसे ही राइट शिफ्ट करना है तो राइट, अभी आप देख सकते हो राइट शिफ्ट में 20 है, बराबर ना? 20 है, कितना दिया है? 20, तो वो राइट शिफ्ट करेगा। ओके, तो जिस तरह आपको लेफ्ट शिफ्ट, ये थोड़ा डिफिकल्ट गिरेगा लेकिन आपको थोड़ा बाइनरी समझ में आने के बाद आप थोड़ा सा क्लियर कर सकते। और उसी का रिलेटेड एग्जांपल दिया है बिटवाइज शिफ्टिंग। ये एग्जांपल आप घर पे प्रैक्टिस करो और देख सकते हो कि बिटवाइज ऑपरेटर सच में ये 2 का कन्वर्जन इसमें हो रहा है, 1 का कन्वर्जन इसमें हो रहा है, और आंसर्स भी उसमें दे रहा है। ठीक है, आंसर्स भी उसी में रिक्वायर्ड में दे रहा है, और हम लोग को आंसर में 2 1 2 0 ये जो आ रहा है वो बाइनरी कन्वर्जन में आंसर है। अगर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट भी किया ना तो लेफ्ट शिफ्ट वाला आंसर चेंज होगा, राइट शिफ्ट वाला आंसर भी, एक बिट भी चेंज हुआ आंसर चेंज हो जाता है। गॉट इट? यस स्टूडेंट, क्लियर? हेलो हेलो? Yes sir. Yeah, that you practice at home. Now I jump to the conditional or ternary operator. Okay, this operator return one value if condition is true. देखो कंडीशनल थोड़ा सा अलग ऑपरेटर है, यहाँ कंपेयर हो रहा है, कंडीशन दे रहे हैं x ग्रेटर देन 90, फिर क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, फिर उसके बाद 0 कोलन 1 दे रहे हैं, मतलब 0 मतलब व्हाट? फॉल्स, एंड 1 मतलब ट्रू, ऐसा कर दे। लेकिन ऐसा नहीं है, 90 ग्रेटर देन हुआ तो 0 डिस्प्ले करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो फॉल्स, मतलब ये फॉल्स वाला आंसर। तो यहाँ एग्जांपल में दिखा रहे इफ x इज ग्रेटर देन 90 0 इज रिटर्न, if x इज लेस देन 90 1 इज रिटर्न। ओके, तो हम लोग ऐसे कंपेयर कोई भी ऑपरेटर कर सकते, एक एग्जांपल देख लेते हैं। वी आर कंपेयरिंग विद दैट नंबर, कंडीशनल के लिए हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं। ये समझ में आया? ये आपको भेजने की जरूरत नहीं है ना, अगर आपको चाहिए तो ये चार्ट भी भेज देता आपको प्रिंट स्क्रीन करके, घर पे आप थोड़ा सा देख लेना, ये प्रिंट स्क्रीन कर लेना। नाउ प्रिंट स्क्रीन, ये चार्ट में आपको भेज देता है 8421 सिस्टम में, घर पे आप लोग देख लो और बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में जान लो। ठीक है, नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट एग्जांपल, फाइल न्यू F5, और वहां पे हम लोग हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main करली ब्रैकेट। हम लोग को 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं और उसके साथ हम लोग को काम करना है, बराबर है? तो हम लोग को क्या कह दिया हुआ है वेरिएबल में, उन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया है देखो,
num1 num2 रिजल्ट, num1 में 27 लिया है, num2 में 11 लिया है, ठीक है। चलो पहले वो देख लेते हैं, डिक्लेयर करते हैं int num1 num2 रिजल्ट, और फिर उसके बाद उन्होंने दो वेरिएबल के वैल्यूज डिक्लेयर किए, num1 इज इक्वल टू 22 एंड देन num2 इज इक्वल टू 11 एंड देन रिजल्ट में क्या आंसर है। आगे आंसर्स क्या स्टोर करने वाले हैं तो बताया है, प्रिंटफ में num1 की वैल्यू num2 की वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं, फिर कंडीशनल ऑपरेटर यूज करें, num1 ग्रेटर देन num2 अगर है तो num1 दिखाएगा, नहीं तो num2 दिखाएगा, और फिर ग्रेटर नंबर कौन है वो बताएगा, ठीक है। चलो नाउ वी हैव टू गो ऑन देयर, और वहां पे हम लोग num1 और num2 से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग यूज पहले डिस्प्ले पार्ट करते हैं, num1 इज इक्वल टू %d, क्या वैल्यू दिखाना है वो, देन num2 स्लैश एन करना है तो स्लैश एन कर लेते हैं, num2 इज इक्वल टू %d स्लैश एन, और दिखा रहे हैं num1 कोट्स बंद, कोट्स पहले बंद फिर कॉमा, फिर num1 एंड num2 वैल्यू दिखा रहे हैं, फिर रिजल्ट के अंदर कंपेयर कर रहे हैं, क्या कंपेयर कर रहे हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके num1 ग्रेटर देन num2, उसमें क्वेश्चन मार्क, मतलब कंडीशनल ऑपरेटर में अगर ग्रेटर देन रहेगा तो num1 दिखाएगा, अदरवाइज सिंगल कोलन num2 वैल्यू दिखाएगा। कंपेयर हुआ, फिर रिजल्ट में हम लोग दिखाना चाहते हैं ग्रेटर नंबर इज %d, और उस रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे, ओके। नाउ गेट ch ब्रैकेट बंद और ऊपर क्लियर स्क्रीन, that is okay. Now control F9. Now you can see that num1 is equal to 22, num2 is equal to 11, greater number is hello 22, या आंसर मिला। Yes. अगर हम लोग ऊपर में उल्टा करते हैं 11 नीचे 22, अभी हम लोग चेक करते हैं क्या मिला, अगेन ग्रेटर नंबर इज 22, लेकिन वो कौन सा नंबर दिखा रहा है, num1 वाला दिखा रहा है कि num2 वाला दिखा रहा है, num2 num2, इसका मतलब आंसर इज, कोई भी ट्रू वाला आंसर यहाँ दिखा रहा है, पहला वाला आंसर में क्या मिला, कंडीशन दिया उसमें num1 आएगा, अदरवाइज num2 आएगा, बराबर है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग को ग्रेटर नंबर ही दिखा रहे हैं, अगर हम लोग ने लिखा लेस देन वाला नंबर लिखो तो वो दूसरा नंबर दिखा, तो रिजल्ट उसका अलग से बनाना पड़ेगा, अलग से मतलब सेम, सपोज कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट, यहाँ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, अभी लेस देन से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे अभी लेस देन वाला आंसर, लेस देन नंबर, ओके, लेस देन नंबर इज, तो हम लोग को लेस देन वाला आंसर अभी डिस्प्ले होगा। दोनों आंसर देखो, पहला वाला ग्रेटर नंबर इज 92 एंड लेस देन नंबर इज 11, गॉट इट, यस स्टूडेंट, ओके, वेरी गुड। तो इस तरह हमारा प्रोग्राम्स बन जाता है, कर सकता है, लॉजिकली हम लोग प्रूव कर सकते हैं, और इसमें हम लोग ने अभी क्या यूज किया, कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क num1 कोलन num2, दैट इज योर कंडीशनल, पहले कंडीशन देना पड़ता है, फिर क्वेश्चन मार्क देके उसको सवाल पूछते हैं, फिर जो आंसर मिलेगा अगर ट्रू आंसर है तो num1 दिखाएगा, फॉल्स आंसर है तो num2, गॉट इट, यस स्टूडेंट। चलो इसको भी हम लोग प्रिंट स्क्रीन करके भेज देता हूँ, प्रिंट स्क्रीन, देन गो ऑन व्हाट्सएप एंड देन आई पेस्ट इट ओवर हियर, ये आपको भेज दिया। चलो आगे का ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, देखो दिस ऑपरेटर आर यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1 और डिक्रीज द वैल्यू बाय 1। तो हम लोग को इंक्रीमेंट, दो तरह के इंक्रीमेंट, एक पोस्टफिक्स प्रीफिक्स होता है, यहाँ पे हम लोग को अभी प्रीफिक्स पहले, मतलब पोस्टफिक्स नहीं दिया, प्रीफिक्स मतलब पहले दिया हुआ, पहले इंक्रीमेंट किया है फिर वेरिएबल का नाम दिया। हम लोग देख लेते हैं उस ऑपरेटर में क्या करते हैं। देखो इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज जस्ट लाइक दैट, प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस, पोस्टफिक्स प्रीफिक्स, व्हाट इज दैट प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स पहले इंक्रीमेंट होगा कि बाद में इंक्रीमेंट होगा, सर पहले होगा, पहले होगा, और पोस्टफिक्स बाद में बाद में। इंक्रीमेंट,
तो यहाँ पे प्लस प्लस आई आपका पोस्ट है कि प्री है? हेलो, प्लस प्लस आई यहाँ पे प्री है कि पोस्ट है? प्री प्री है, प्री और है। आई प्लस प्लस पोस्ट है, तो वही उधर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट उन्होंने बताया भाई। देखो 27 लिया, 27 प्लस प्लस करेंगे तो एक से इंक्रीमेंट होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट बताया, फिर माइनस माइनस प्री डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। तो आंसर्स क्या क्या आते हैं वो हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल में अभी देख लेते हैं। ओके, एक वैल्यू ली है और उससे उन्होंने सारे ऑपरेटर्स का आंसर कंपेयर करके बताया। चलो नाउ अल्ट एंटर, फाइल न्यू, अल्ट एंटर, होम हैश include stdio.h hash include conio.h void main. Now we are using one variable int num1, ओके, और उसमें वैल्यू स्टोर इधर भी कर सकते हैं या नीचे भी कर सकते हैं। num1 इज इक्वल टू 27 और यहाँ क्लियर स्क्रीन करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको डिस्प्ले करते हैं। printf num1 इज इक्वल टू %d और दिखा रहे हैं हम लोग num1। ओके, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट से हम लोग इंक्रीमेंट वाला वैल्यू दिखाएंगे। पहले क्या कर रहे हैं, num1 प्लस प्लस, व्हाट इज दैट, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। फिर वापस printf कंट्रोल इंसर्ट शिफ्टिंग, पहले इंक्रीमेंट किया तो आंसर मिलेगा num1 का इंक्रीमेंट बाय 1। अभी हम लोग कर रहे हैं num1 माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट अगेन कर रहे हैं, डिस्प्ले आएगा माइनस में। फिर उसके बाद अभी पोस्ट प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस एंड देन शिफ्ट इंसर्ट, इसमें क्या आएगा प्रिंटअप में, या प्लस प्लस माइनस माइनस, ओके। यहाँ पे अभी हम लोग माइनस माइनस करते हैं, शिफ्ट इंसर्ट ये नहीं चाहिए, ओके, शिफ्ट माइनस माइनस। अभी सबके आंसर्स यहाँ स्टोर हो रहे हैं, num1 का वैल्यू क्या आएगा वो दिखा रहा है, बराबर। अगर हम लोग ने रिजल्ट में स्टोर किया होता था, प्रोग्राम में कैसे दिखाया वो डायरेक्टली दिखा, बराबर दिखा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर बराबर है। नाउ गेट ch, और गेट ch में क्या आंसर आता है वो देखते हैं तो पता चलेगा। कंट्रोल F9, पहले इसमें 27 था, उसका 27 ही हुआ क्योंकि हम लोग ने खाली डिस्प्ले किया, लेकिन जब num1 प्लस प्लस किया तब आंसर मिला 28, बराबर। अभी num1 माइनस माइनस किया, आंसर मिला 27, 28 माइनस 1। फिर पहले इंक्रीमेंट किया प्लस प्लस num1 तो आंसर मिला 28, वो 27 नहीं दिखा है उसने, 28 दिखा है क्योंकि इंक्रीमेंट बाय। फिर उसके बाद माइनस माइनस num1 किया, उसका आंसर 27। गॉट इट? यस स्टूडेंट, हेलो, यस सर। तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के आंसर। तो इस तरह हम लोग ये प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का डिफरेंस भी उन्होंने बताया हुआ है और ऑलरेडी हम लोगों ने एग्जिस्टिंग में देख लिया। तो दिस इज ऑल, ऑपरेटर्स आर ओवर। अभी एक स्पेशल ऑपरेटर्स रह गया और स्पेशल ऑपरेटर बताना है, स्पेशल ऑपरेटर इन सी, स्पेशल एंड ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू गेट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। एड्रेस जैसे हम लोगों ने कुछ स्कैन अप करना है वैल्यू, सपोज हम लोग को 22 27 खुद इनपुट नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को कंस्टेंट वैल्यू दिखाना नहीं है, हम लोग को पहले यूजर को बताना है प्लीज एंटर वन नंबर, एंटर एनी नंबर वैल्यू ऐसे करके मैसेज दोगे। फिर स्कैन अप करोगे, तब स्कैन अप के बाद %d में हम लोग ने लिखा कि इंटीजर नंबर लेना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड num1 क्या कर रहा है, एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, एंड क्या काम कर रहा है, एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। तो अभी यूजर शुड एंटर द वैल्यू, जो यूजर वैल्यू डालेगा उसके रिलेटेड हम लोग का आंसर है। गॉट इट? यस स्टूडेंट। अगेन अगर मैं जो नंबर यहाँ पे डालूंगा उसके रिलेटेड आंसर, इसका मतलब एड्रेस num1 स्टोर करके उसकी वैल्यू num1 में स्टोर कर रहा है और फिर उसके साथ वो आंसर है। गॉट इट? यस स्टूडेंट, हेलो, एंड का समझ में आया? या दूसरा होता है पॉइंटर।
ये अलग ऑपरेटर है, इसके लिए स्पेशल हम लोग को टॉपिक दिया है. दिस ऑपरेटर इज एज अ पॉइंटर टू एरर गिविंग द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. दूसरे वैल्यू के आपको एड्रेसिंग करना है, पॉइंटिंग करना है तो पॉइंटर दे. तो पॉइंटर x स्टार x वेयर स्टार इज द पॉइंटर टू द वेरिएबल x. Got it? तो यहाँ पे हम लोग को एक दिखा है और एक दूसरा होता है. This operator gives the size of the variable, मतलब कैरेक्टर का साइज कितना है, इंटीजर का कितना है, फ्लोट का. ये ऑलरेडी हम लोगों ने पहले देखा था फर्स्ट यूनिट. वो साइज ऑफ दिखा होता है. इस तरह उन्होंने दिया हुआ है. वो भी प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद आज का सेशन यहाँ पे रुकाते हैं, ताकि हम लोग ऑलरेडी हम लोग का इतना हो चुका है कि हम लोग यूनिट मतलब यहाँ तक कंप्लीट हुआ है. ओके, यूनिट का चैप्टर जो है एक चैप्टर हम लोग नेक्स्ट टाइम हमारा यूनिट सेकेंड भी कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो यू हैव टू डू इट. अभी हम लोग ये खाली कंप्लीट करते हैं अरे एंड देन वी विल स्टॉप एंड देन वी आस्क अबाउट द डाउट. चलो, हैश इंक्लूड ये आपको मैंने भेज दिया ना, इंटर num1 num2 की नहीं भेजा. ओके, चलो मैं भेजता हूँ प्रिंट स्क्रीन. I use it paste. Yeah. Now again this one. File new. F1. Hash include stdio.h. Hash include conio.h. Void main. Okay. Then compare. id उन्होंने पॉइंटर वेरिएबल दिया, नॉर्मल नहीं, पॉइंटर वेरिएबल num1 इज इक्वल टू 13. सॉरी, num1 में 13 डिक्लेयर किया है. ओके, नंबर, लेकिन एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं, पॉइंटर एस्ट्रिक साइन के नम वेरिएबल के सामने एस्ट्रिक, तो इट इज पॉइंटर वेरिएबल. ओके, तो अभी पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यूज कैसे दिखा रहे हैं और दिखा बता रहे हैं. देखो, पहले प्रिंटफ %d num1, तो पॉइंटर ऑपरेटर का गया, फिर एड्रेस ऑफ दैट पॉइंटर फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके, ये दो चीजें वो लोग कर रहे हैं, पहले वैल्यू दिखा रहे हैं और एड्रेस दिखा रहे हैं. चलो दोनों देखते हैं. नाउ दे आर गिविंग प्रिंटफ, पहले /n, और उन्होंने दिया है क्या देना है उन लोगों को, पहले वैल्यू दिखाना है. तो वैल्यू ऑफ num1 इज %d और यहाँ पे num1 दिखा. ठीक है, और दूसरे स्टेटमेंट में तुरंत उन्होंने क्या दिखाया है, /n एड्रेस ऑफ num1 इज. हाँ, एड्रेस दिखाने के लिए ऑपरेटर %d लिया है. ओके, नंबर ही लिया %d कॉमा एंड num1. ठीक है, नाउ ये गेट ch करते हैं एंड देन वी आर कंपेयरिंग दैट. क्लियर स्क्रीन भी करना पड़ेगा, गेट ch एंड क्लियर स्क्रीन किया. ओके, नाउ कंट्रोल F9. एरर क्यों नहीं आया? अच्छा, पॉइंटर वेरिएबल्स के इधर इंटीजर्स इधर आया, लेकिन क्या बताएं, कन्वर्ट इंटीजर टू स्टार. ओके, इंटीजर टू स्टार कन्वर्ट करने के लिए 90 डिक्लेयर किया, %d. अच्छा, 90 num1 लेता हूँ, तो नीचे num1 बराबर फर्स्ट पॉइंटर num1 इज इक्वल टू 30. ये देखते हैं, या वैल्यू ऑफ दैट अलग ही वैल्यू आ रहा है. ओके फाइन, इन्होंने अभी एक गलती किया है, वो मैं सुधारता हूँ. पहले num1 लूंगा, इन्होंने गलती किया है, एक गलती है बताता हूँ. int स्टार p और p के अंदर num1 को रखेंगे. लेकिन उसके अंदर भी इनको पॉइंटर अलाउड नहीं देना, तो यहाँ पे इंटीजर लिखता हूँ और रिटर्न वैल्यू लिखता हूँ गेट ch की जगह 0. F5 अगेन यार num1 नहीं दिखा रहा है, बस एंड आ रहा है ना, इज इक्वल टू एंड. नॉर्मल वेरिएबल, हाँ बराबर, इधर पॉइंटर दिखाना चाहिए था, स्टार p.
अभी 28 आ रहा है। यहाँ पे या नाउ बराबर है। ओके, सी दैट मैंने क्या किया बता, अभी चेंज क्या किया बता। मैंने num1 में एक नॉर्मल वेरिएबल में 20 वैल्यू स्टोर किया, लेकिन 20 को पॉइंटर का एड्रेस दिया। सो दिस इज अ स्पेशल ऑपरेटर पॉइंटर p, पॉइंटर वेरिएबल स्टोर द एड्रेस ऑफ नॉर्मल वेरिएबल एंड num1, उसका एड्रेस स्टोर कहते हैं। और मैंने दिखाते हुए क्या दिखा है, पॉइंटर को दिखा है तो वैल्यू आया, और एड्रेस को दिखा है, एड्रेस ऑफ दैट p वो आपको दिखाएगा। Alt F5, see that now. Value of num1 is 20, but address of num1 is where it will store in -14 करके एक एड्रेस है। एड्रेस एक्चुअली इज जंबल, रैम के अंदर जो एड्रेस है उसके अंदर वो स्टोर हो रहा है। स्टोर इट इन द एड्रेस ऑफ p, ओके, स्टोर इट इन द एड्रेस ऑफ p। p के अंदर अगर खाली p भी देंगे तो भी वो आंसर वही एक 12 p का एड्रेस बताएगा, 12 -12 करके। Okay, is it clear? Hello, yes student, hello. Yes, sir. हाँ, क्या किया हम लोग ने, एक नॉर्मल वेरिएबल लिया और उस नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस किसके अंदर स्टोर किया, पॉइंटर, एक बॉक्स के अंदर। ये पॉइंटर करके टॉपिक आने वाला है, उस टाइम क्लियर ही होगा, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ आ चुका है, इसके लिए हम लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू, पॉइंटर की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो हम लोग का आंसर मिल रहा है num1 का वैल्यू, बराबर है। लेकिन नॉर्मल एड्रेस ऑफ p कर रहे हैं, तो p के अंदर एड्रेस ऑफ p का एड्रेस हम लोग को अलग से मिल रहा है कि -12 या -14। दिस इज द एड्रेस वेयर यू स्टोर द नंबर। देखो, गॉट इट, क्लियर अबाउट दैट? यस स्टूडेंट? Yes, sir. चलो, ये हुआ, मैं ये प्रिंट स्क्रीन कर रहा हूँ, दिस इज पॉइंटर एड्रेस। और उसके साथ सॉरी साइज ऑफ ऑपरेटर भी देखने का है ना, एक साथ दोनों प्रोग्राम दिए उन्होंने। तो साइज ऑफ कंप्लीट करता हूँ। देखो साइज ऑफ उन्होंने दिया है, साइज ऑफ ऑपरेटर में वी कैन फाइंड आउट द व्हाट डेटा टाइप साइज, कितना साइज का है डेटा टाइप वो बता रहा है। तो हम लोग ने ऑलरेडी एड्रेस तो दिखा लिया, लेकिन अभी साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करके उसका साइजिंग भी num1 का चेक कर रहे हैं। साइज ऑफ num1, साइज ऑफ int, साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ कैरेक्टर, साइज ऑफ डबल, सबका साइज कितना होता है वो पता कर सकते हैं, डेटा टाइप का क्या साइज होता है वो पता चलेगा। सो वी आर कंपेयरिंग दैट साइज ऑफ। यहाँ देखते हैं पहले printf /n size of in num1 is %d। d आता है कि मालूम नहीं, d आता है, क्या दिए, u सॉरी, साइज ऑफ के लिए आपको क्या आएगा, u आएगा, u। एंड यहाँ पे लिखना है साइज ऑफ इज ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन, पहले दे रहे हैं num1 का साइज, ठीक है। और उसी तरह हम लोग को किसका साइज देखना है, अलग अलग डेटा टाइप का भी साइज है, शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट, ठीक है। अभी अलग अलग मतलब इंटीजर का साइज क्या होगा, साइज ऑफ इंटीजर, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे int, फिर साइज ऑफ क्या लिखना है, कैरेक्टर का साइज कितना है, तो यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ कैर। फिर आपको देखना है डबल का साइज, नहीं फ्लोट का साइज, फ्लोट, यहाँ लिखते हैं साइज ऑफ फ्लोट। फिर आपको चाहिए डबल, यहाँ लिखेंगे हम लोग डबल का साइज। इसे कोई भी साइज जिसका साइज चाहिए वो कंपेयर करें, ठीक है। शिफ्ट डिलीट ch कंट्रोल F9, सारे आंसर मिल रहे हैं। पहला 20 num2, साइज ऑफ num1 कितना है, इंटीजर का साइज कितना है 2 बाइट, int का 2 बाइट, कैरेक्टर का 1 बाइट, फ्लोट का 4 बाइट और डबल का 8 बाइट। गॉट इट? यस स्टूडेंट? Yes, sir. Okay, so this is the finding the size of the given data type. Print screen. Okay, WhatsApp में मैं भेज रहा हूँ। ये हुआ लास्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू। ओके, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप बोलो। ओके, यस स्टूडेंट,
Now I want to take the attendance. चलो, give me attendance. Roll number 1 to 10. रोल नंबर 7 सर. एक मिनट शेयरिंग स्क्रीन करता हूँ ताकि आपको पता चले. रोल नंबर 7. Roll number Hello. 2, sir. एक मिनट पहला 1 to 10 में बोलो. 1 to 10 में 6 Two. 7 2. 2 5 2 5 6 7 4 2 4 5 6 7 आगे 11 to 20 14 16 15 sir. 14 15 16 15. 19 14 15 16 19 आगे 21 to last Sir, 22. sir 23 22. 22 23 then 28 नितेश फिर सोमेश शिंदे हो गया ना हो गया आगे ऋषभ शेट्टी भी हो गया आगे कौन है यू हैव टू राइट योर रोल नंबर बिफोर योर नेम प्रोफाइल में चेंज करो 28 हो गया नितेश और कोई है चेक करो अपने आप को और बताओ मैं नंबर बता रहा हूँ रोल नंबर 2 4 5 6 7 after that 14 15 16 19 20 to 23 then 20 Sir, 17. 17 खुशबू ओके Yes, sir. ओके 17 सॉरी 17 हो गया और कोई बाकी है यस ओके नाउ आई स्टॉप द शेयर एनी डाउट Sir, बोलिए यस स्टूडेंट बोलो sir, until now, whatever you are taught before this lecture, can you just take a revision? I cannot take the revisions. I give you the recording lectures to you. मैं वो बना रहा हूँ YouTube में आप डायरेक्ट हमारा lectures देख लो. Is it clear? Hello. Okay, sir. Okay. Sir, channel का नाम? जनरल आपके साइंस प्रैक्टिकल का जो जनरल रहता है ना वैसा ही जनरल आपको लेना है या आईटी Sir, प्रैक्टिकल बताओ YouTube उसमें channel, sir. Channel. नहीं चैनल वो मैं आपको लिंक भेजूंगा ऐसे नहीं भेजूंगा मैं लिंक भेज के आपको खाली वो पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है डायरेक्टली आपको वो लेक्चर्स पर्टिकुलर लेक्चर्स आपको दिखा देंगे वो कर रहा हूँ ठीक है sir. फाइन उसका टाइम जाएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग अपलोड करना पड़ता है तो उसको टाइम जाता है ठीक है ओके फाइन एनी अदर डाउट No, sir. No, sir. थैंक यू लीव नाउ